A very good morning to all of you. In the series of biochemistry, in last class we have studied about the structure and classification of carbohydrates. Now today we will go through the structure and classification of lipids. Lipid is also one of the most important food stuff that we take. Carbohydrate, lipid and fat. These are the main three stuffs we take as a complex food material. So now what is the definition of lipids? The lipids are organic compounds that contain hydrogen, carbon and oxygen. Organic compound है तो hydrogen, carbon and oxygen रहेगा इसमें, which forms the framework of the structure and function, जो कि living cells के structure और function का framework बनाते हैं. Lipids are heterogeneous. ये heterogeneous है, मतलब एक जैसे एक तरह के नहीं बने होते. Heterogeneous. These are the heterogeneous group of organic compounds that are insoluble in water. इसका properties क्या? You know, जैसे तेल है, घी है, ये सारे lipid fat के अंदर आते हैं. ये insoluble in water होते हैं और soluble in non-polar organic solvent में soluble होते हैं. They naturally occurs in most plant and animals. ये plants और animals में बहुत में naturally भी occur करते हैं and microorganism and used for cell membrane components. You know the one of the important components of the cell membrane is lipid. जो cell membrane होता है वो उसमें एक component lipid का भी है और ये energy storage fat के रूप में energy storage का काम करता है. हमारे muscles के नीचे जैसे वो एक insulation का काम करता है. जो स्टोरेज होता है डिपोज टिश्यू में, ये इंसुलेशन का काम करता है और बहुत सारे हार्मोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन में लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. Now what are the properties of lipids? तो लिपिड्स में भी आइदर लिक्विड भी हो सकता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है रूम टेम्परेचर पे, और जो प्योर फैट है एंड ऑयल्स है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होते हैं. और जिसमें यू नो दैट इट इज एन एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, insoluble in water अभी मैंने बताया, और soluble in organic solvents like alcohol, chloroform, benzene, ये सब में ये soluble होता है. और no ionic charges होता है. Solid triglycerol fats have high proportion of saturated. अभी हम लोग देखेंगे कि saturated और unsaturated fatty acid क्या होता है. और liquid triglycerol जिसको oils कहते हैं, solid triglycerol उसको fats कहते हैं, have high proportion of saturated fatty acid. और liquid triglycerol जो है have high proportion of unsaturated fatty acid. ठीक है, तो लिपिड्स में किस चीज का बना होता है? फैटी एसिड और ग्लिसराइड्स का. फैटी एसिड दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. लिपिड नॉट ग्लिसराइड लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी हो सकते हैं. इसमें साइफोलिपिड, स्टेरॉइड्स, वैक्सेस, ये भी हम लोग सब एक एक करके डील करेंगे, तब समझ में आएगा आपको. अब ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर. ये सारे अभी मैंने तो थोड़ा सा बताया कि क्या प्रॉपर्टीज है लिपिड्स का. हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल और एनी अदर ईस्टर, जो भी ईस्टर होते हैं रिएक्ट करेंगे वाटर पे टू फॉर्म देयर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल. इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं. सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन में भी ट्राई एसिलल ग्लिसरॉल्स में भी हाइड्रोलाइज टू सेवरल प्रोड्यूसर्स, मोस्ट कॉमन व्हिच यूटिलाइज अल्कली और एंजाइम कॉल्ड लाइपेज. Alkaline hydrolysis term as saponification because ये सोप बनाने के काम में आता है. Because one of the product of hydrolysis is soap. इसमें से जो एक प्रोडक्ट बनता है वो सोप बनता है, इसीलिए इसको हम लोग saponification कहते हैं. जनरली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड होता है. हाइड्रोजिनेशन, बिकॉज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो आप देखिएगा वहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हाइड्रोजन को लेने की क्षमता रहती है. तो द हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड्स इन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी हाइड्रोजिनेटेड and reacting with hydrogen to produce saturated fatty acid बनाएगा. Halogenation, unsaturated fatty acid होता है वे whether they are free or combined as esters in fats and oils with halogen addition at the double bonds. The reaction results in the decolorization of the halogen solution. Rancidity, with term rancid is applied for any fat or oil that develops a disagreeable odor. मतलब अजीब सी
ऑर्डर अगर प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग रैंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी अकर्स इन ट्राइग्लिसरॉल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, मेन वी हैव टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। तो लिपिड्स अब जैसे ये ऑर्गेनिक है तो किस चीज का बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, but have a much lower proportion of water than other molecules such as carbohydrates. Water इसमें कम होता है carbohydrates के। Unlike polysaccharides and proteins, lipids are not polymers. ठीक है, जैसे प्रोटीन अभी तो नहीं पढ़ा है मैंने, पर आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, उसमें पॉलीमर होता था ना, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ये पॉलीमर्स नहीं बनाते, they lack a repeating monomer unit। ठीक है, they are made up of, और ये जो लिपिड्स है वो दो चीज से बनता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, A glycerol molecule is made up of 3 carbon atom। जो glycerol molecule है वो 3 carbon atom का बना होता है with a hydroxyl group attached to it and hydrogen atom occupying the remaining position। और fatty acid जो होता है consist of an acid group at one end। उसके एक end पे acid रहता है, carboxylic acid at one end, and molecule and hydrocarbon chain which is usually, जिसको हम लोग हर जगह R से कहते हैं, जिसमें भी saturated और unsaturated। Saturated जिसको कहेंगे जिसमें सिर्फ single bond होंगे। The fatty acid is saturated if every possible bond is made with the hydrogen atom such that there is no double bond। अगर डबल बॉन्ड नहीं है एक भी तो वो सैचुरेटेड है, और अगर डबल बॉन्ड है उसमें तो वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होंगे, डू कंटेन CC डबल बॉन्ड। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है 1, अगर मोनोसैचुरेटेड फैटी कहेंगे तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, और पॉली अनसैचुरेटेड कहेंगे तो मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा। और ट्राइग्लिसराइड्स का क्या स्ट्रक्चर है? ट्राइग्लिसराइड कैसा लिपिड है? कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बॉन्डेड विथ 3 फैटी एसिड। अगर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में 3 फैटी एसिड रहेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। क्लियर? द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल आर कोवैलेंट, और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट कहते हैं, और उसी को हम लोग ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, इसीलिए ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल भी कहते हैं हम लोग इसको। देयर आर फॉर्म ड्यूरिंग द कंडेंसेशन रिएक्शन। देख सकते हैं आप, लिपिड्स आर द polymer of fatty acid that contains a long non-polar hydrocarbon chain with small polar region containing ऑक्सीजन। ये पोलर रीजन ये है, ये लॉन्ग नॉन पोलर रीजन होता है। द लिपिड्स है सैचुरेटेड में, आप देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है, और इसमें देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, इसीलिए ये नॉन सैचुरेटेड। अगर ये यहाँ पे फिर ये हाइड्रोजन आ जाएगा, अगर दोनों ये बॉन्ड खुल जाएंगे तब ये फिर वापस सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो लिपिड्स को अगर हम लोग बहुत ब्रॉड मेजर पे क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर, नॉन सैपोनिफेबल और सैपोनिफेबल, माने वही जिसमें साबुन का हाइड्रोलिसिस पे सोप बनता है। और नॉन सैपोनिफेबल लिपिड्स कैन नॉट बी ब्रेकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। उसको हाइड्रोलिसिस पे हम लोग और छोटे में नहीं तोड़ सकते हैं, उसको हम लोग नॉन सैपोनिफेबल लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स इसमें कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं। और सैपोनिफिएबल लिपिड्स किसको कहते हैं? लिपिड्स कंटेन्स 1 और मोर ईस्टर ग्रुप होंगे जिसमें, और हाइड्रोलिसिस in the presence of acid इसमें हो सकता है acid base और enzymes. These includes triglyceride, wax, phospholipids and sphingolipids. We will come through this. Each of these categories, अगर इसको हम लोग और फर्दर कहेंगे तो पोलर और नॉन पोलर लिपिड में भी डिवाइड कर सकते हैं। नॉन पोलर लिपिड जैसे ट्राइग्लिसराइड आर यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड फ्लूइड, फुल एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम करता है। पोलर लिपिड है which can form a barrier with the external water environment are used in membranes. membranes में यूज किया जाता है। तो नॉन सैपोनिफेबल और सैपोनिफेबल लिपिड्स हो सकता है, जो कि ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगा जिसका, इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है। और फिर अगेन इसको नॉन पोलर और पोलर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मेनली इसको सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड में डिवाइड करते हैं। तो विद इन दीज 2 मेजर क्लासेस ऑफ लिपिड, सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड, सेवरल स्पेसिफिक टाइप, और इसी के अंदर फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ लिपिड्स आपको देखने को मिलेगा।
सिंपल लिपिड्स का किसको कहते हैं? जो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल, जो वेरियस अल्कोहल के साथ अगर ईस्टर बनाते हैं तो उसको हम लोग सिंपल लिपिड कहते हैं। और फैट्स किसको कहते हैं? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विथ ग्लिसरॉल, ऑयल्स आर फैट इन द लिक्विड स्टेट, ऑयल आर फैट्स इन द लिक्विड स्टेट। और वैक्सेस किसको कहते हैं? जो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड रहेगा लेकिन ग्लिसरॉल नहीं रहेगा उसमें, ग्लिसरॉल के अलावे किसी के साथ अगर बनाता है हायर मॉलिक्यूलर वेट के अल्कोहल के साथ तो उसको हम लोग कहते हैं वैक्सेस। और कॉम्प्लेक्स लिपिड की तरह ईस्टर ऑफ फैटी एसिड containing groups in addition to alcohol, जो कि कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड में ये ईस्टर और फैटी एसिड अल्कोहल के साथ अगर और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रुप भी रहेगा, एडिशनल टू अल्कोहल कुछ और रहेगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कहते हैं। जैसे फॉस्फोलिपिड, इसमें लिपिड्स के साथ फॉस्फोरस है, ग्लाइकोलिपिड इसमें लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो ऐसे उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड कहते हैं। तो लिपिड कंटेनिंग इन एडिशन विद फैटी एंड एसिड्स एंड अल्कोहल, जैसे अगर फॉस्फोरस रहेगा तो फॉस्फोलिपिड होगा। दे फ्रीक्वेंट हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर द अल्कोहल इज ग्लिसरॉल एंड इन स्फिंगोफॉस्फोलिपिड द अल्कोहल इज स्फिंगोसिन, ठीक है। अगर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है तो इसका मतलब कि इसमें जो अल्कोहल पोर्शन है वो ग्लिसरॉल है, अगर स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स है इसका मतलब कि जो अल्कोहल पोर्शन है वो स्फिंगोसिन है। ग्लाइकोलिपिड्स, अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अदर फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड जैसे सल्फोलिपिड्स, अमाइनोलिपिड्स, अगर सल्फोलिपिड्स मतलब सल्फर है, अमाइनो मतलब अमीनो एसिड्स है, लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड के साथ प्रोटीन है, तो मे बी प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स लिपिड में जिसके साथ वो प्रेजेंट होता है उसके अनुसार उसका नाम होता है। प्रिकर्सर्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स, उसके बाद एक डिराइव्ड लिपिड्स भी होता है, दिस इंक्लूड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स एंड अल्कोहल्स, fatty aldehydes, lipid soluble vitamins and hormones because they are uncharged, ठीक है, नॉन पोलर होता है। कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आर टर्म्ड एज न्यूट्रल लिपिड, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं रहता है तो ये प्लस या माइनस नहीं शो करते हैं, इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। दीज कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब जैसे देखिए फैटी एसिड, अब हम लोग इसमें आते हैं। फैटी एसिड देख लिए कि मेन कंपोनेंट है लिपिड का, तो फैटी एसिड को फिर हम लोग दो में डिवाइड कर सकते हैं। फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ एन और ऑर्गेनिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, often with long aliphatic tails, और इसमें either saturated भी हो सकते हैं और unsaturated भी हो सकते हैं। तो saturated fatty acid अभी बताया when there is no carbon double bond, अगर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो वो saturated fatty acid होगा। और सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, जैसे घी है, डालडा है, ये सारी चीजें जो रूम टेम्परेचर पे जम जाती हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है दैट इज गुड फॉर हेल्थ। द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड अनसैचुरेटेड corresponding size due to their ability to pack their molecule together and therefore it is a solid at the room temperature. Unsaturated fatty acid में डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर, और वही इंडिकेशन है कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। Unsaturated on the other hand is double bond that create a link structure which doesn't allow their group to molecules straight, उसमें मतलब शेप नहीं लेने देता, इसलिए ये लिक्विड होता है। लिक्विड होता है जैसे रिफाइन ऑयल है, तेल है, ऑयल सब आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। What are the role of fats? Fats play several major roles in our body, ठीक है। Some of the most important roles of fats are mentioned. The fats in the correct amount are necessary. अब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए इसका करेक्ट अमाउंट ज्यादा भी फैट नहीं जरूरी है, करेक्ट अमाउंट चाहिए। मेनी फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर नीड टू बी एसोसिएटेड विद फैट। बहुत सारे विटामिन होते हैं तो फैट में सॉल्युबल होते हैं, तो उसके लिए उसको फैट की अवेलेबिलिटी जरूरी है। They also provide insulation to the body. अगर बॉडी में ये लेयर में जम जाता है तो बॉडी को इंसुलेशन, बहुत मोटे आदमी में देखिएगा कि उनका इंसुलेशन बहुत ज्यादा होता है। They are efficient for to store energy for a very long. अब वैक्सेस पे आते हैं, जो दूसरा हमने बताया था, वैक्सेस भी ईस्टर्स होते हैं, ये लॉन्ग चेन ईस्टर होते हैं। अब एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विथ एन एसिड और अल्कलाइन
ईस्टर्स किसको कहते हैं? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर एसिड या अल्कलाइन के थ्रू ऑर्गेनिक ग्रुप में रिप्लेस किया जाता है तो वैसे बॉन्ड को हम लोग ईस्टर कहते हैं। फॉर्म फ्रॉम लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग अल्कोहल। वैक्सेस आर नेचुरल, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी, यू हैव टू स्टडी बी वैक्स। बी वैक्स भी एक नेचुरल वैक्स का एग्जांपल है। प्लांट वैक्स, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स में आप लोग देख सकते हैं कि वैक्सी कोटिंग होती है ना, प्लांट्स में वैक्सी कोटिंग, जो पानी में पौधे होते हैं उसके पत्ते के ऊपर, ताकि वो पानी में सड़ नहीं जाए, ठीक है। The feathers of bird and fur of some animals also, उसमें वैक्स की कोटिंग होती है जिसको उसको वाटर रिपेलेंट में। Carnauba wax is valued for its toughness and water resistance, great for car wax. तो ये सारे natural waxes. Paraffin wax is not a natural wax. जो paraffin wax होता है वो natural wax नहीं है, वो पेट्रोलियम से केमिकली निकाला जाता है, तो that is not the natural waxes. These are the animal, इसमें waxes में आप animal waxes और plant waxes में classify कर सकते हैं। अब ना फॉस्फोलिपिड्स, जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स था उसमें था ना फॉस्फोलिपिड्स, मतलब फॉस्फोरस एंड लिपिड्स। तो मेम्ब्रेन्स में आपको, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में आपको मिलेगा, चीफली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ट्राइग्लिसरॉल्स एंड phosphoacyl glycerols are similar. However, the terminal OH group of the phosphoglycerol is esterified. यहाँ पे देख सकते हैं, this is terminal group of, और ये fatty acid ester और ये phosphate ester. The name phospholipids come from the fact that phosphoacyl glycerol और lipids, ये ऐसा लिपिड्स है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप है, इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। स्टेरॉइड्स, अभी मैंने बोला था ना हार्मोन्स में बहुत सारे स्टेरॉइड्स भी हैं। तो द केमिकल मैसेंजर कहते हैं किसको? हार्मोन्स को। बॉडीज आर नोन एज हार्मोन्स व्हिच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड इन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो सिंथेसाइज होता है हार्मोन, और डायरेक्टली डिलीवर होता है कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। Steroids are type of hormone which usually recognize the tetracyclic skeleton. इस टाइप का skeleton होता है इसका। The 3 fused 6 member or one, you have seen the steroid hormones of adrenal. उसमें आपने देखा होगा the 4 rings are designated, जैसे ये 4 ring है, A B C D, 4 ring है in the present carbon। वैसे ही कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल is also a wax-like substance found only in animal source food, जैसे ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VDL। ये आप अगर पैथोलॉजी के लिए जाते हैं लिपिड प्रोफाइल में, तो ये सारे टेस्ट आपको करके देते हैं। लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लिपिड, मतलब LDL मतलब लो डेंसिटी लिपिड, HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपिड, VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है। आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट आर फाउंड इन ब्लड सेल्स। कोलेस्ट्रॉल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा होने से ये जमने लगता है ब्लड वेसल्स में, देन इट इज प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट लिपिड फाउंड इन द मेम्ब्रेन। ये स्टेरॉल है, मीन्स द कोलेस्ट्रॉल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरॉइड और अल्कोहल। अल्कोहल और स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको स्टेरॉल कहते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी, ये लीवर में सिंथेसाइज होता है। दीज कंपाउंड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय ऑल लिविंग सेल्स एंड एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। The cell membrane, the steroid ring structure of the cholesterol provides a rigid hydrophobic structure. अभी मैंने पहले बताया था कि हाइड्रोफोबिक होता है। विदाउट कोलेस्ट्रॉल द सेल मेम्ब्रेन वुड बी टू फ्लूइड। अगर ये हाइड्रोफोबिक नहीं होता तो सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्लूइडी हो जाता। ये हाइड्रोफोबिक है, इसलिए पानी को दूर रखता है सेल मेम्ब्रेन से। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड आल्सो बेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर स्टेरॉइड्स को सिंथेसिस करने में। सेक्स हार्मोन्स अभी आपको पढ़ना है जब ओवरी टेस्टिस, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? फंक्शंस इसके लिपिड्स हमने देखा ही है, जैसे एनर्जी स्टोरेज, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इंसुलेशन, प्रोटेक्शन भी देखा प्लांट्स लीव्स में, जैसे बायोएनसी, एक्टिंग एज ए हार्मोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन है, एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड द हाइड्रोफोबिक बैरियर दैट परमिट्स पार्टीशन of the aqueous content the cell and cellular structures, ठीक है। Lipids are major source of energy in animals and high lipid containing seeds
और बहुत सारे एंजाइम्स जो है इसको एक्टिवेट करते हैं, नाम दिया हुआ एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम्स के रूप में भी ये कॉल करते हैं, जैसे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, एस्टेराइड, ये सब है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ carbohydrate. So this is about the generalized structure and classification of lipids. Thank you very much.